Hello everyone, myself Anjali Dikshit, Assistant Professor, Faculty of Juridical Sciences, Rama University. Today, we will discuss about the arrest of a person under Criminal Procedure Code. Chapter 5 CRPC deals with the arrest of a person. Section 41 to 60 all are related to the arrest of a person. Now come to the meaning of arrest. There is not a particular definition given by any section. What is the meaning of arrest? When go through the any provision or laws, the arrest means taking a person into a custody under the authority of a particular law. The purpose of taking a custody of a person to holding and detaining him to answer any criminal charges framed against them. Now come to the what are the kinds of arrest under the CRPC. There are mainly three kinds of arrest specific in the CRPC. First one is arrest in pursuance with the warrant issued by the magistrate. Second one is arrest without warrant within established legal provisions as specific in the section 41, section 42, etc. And last one is arrest on the refusal to give his or her name and residence to the police officer under section 42. Now the question arises, who may be arrest a person? Under the CRPC, we all know that the police officer has authority to arrest any person. But if the circumstances came, then any private person and magistrate can also arrest any person. Section 43 gives authority to a private person who may arrest any person who commit any cognizable offence in the presence of that person. And by a magistrate, section 44 authorized any magistrate, either judicial magistrate or executive magistrate, he may either self arrest any person or give permission or direction to any person to arrest such person who commit any cognizable offence in front of him or her. Now come to the first topic, arrest a person without warrant. We all know that warrant is the authority letter issued by a judicial magistrate to a police officer who may take arrest or who may take custody of a person who have either committed a cognizable offence or any person file a complaint against him. Now, what are the conditions and what are the circumstances when any police officer may arrest any person without warrant? Section 41 of the CRPC deals with the any police officer may arrest any person without warrant in such given circumstances, like police officer may arrest any person as per section 41 subsection 1 clause A. Any police officer may arrest any person who commits in the presence of a police officer a cognizable offence. Cognizable offence are a heinous crime like murder, rape, dacoity, etc. So police officer has a authority to arrest such person to prevent the further offence or to secure the evidences. Now, as per section 41 clause 2 1b, whenever before the police officer any reasonable complaint made, any
credible information received from any sources, any reasonable suspicion exists that a person commits any cognizable offense in any area in which if the court give punishment, it will be more than 7-year imprisonment with fine or without fine, then police officer have authority to arrest such person without the waiting of the warrant issued by the magistrate. Now, any proclaimed offender may also be arrested by the police officer without any warrant. प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बेसिकली वो ऑफेंडर होते हैं जिनको कोई वारंट इशू हुआ है और वो उसके बाद में भी भागे हुए हैं, तो ऐसे पर्सन्स को भी, और वो मतलब ना तो सरेंडर कर रहे हैं ना ही अरेस्ट हो पाए हैं, तो ऐसे पर्सन को भी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. द अदर कंडीशन इज when police officer has a suspicion that the person have found any stolen property, यानी उस पर्सन के पास में कोई ना कोई चोरी की हुई संपत्ति है जिससे उसको लेना है, तो इसलिए पुलिस ऑफिसर यहाँ पर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. या ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर टू एक्सिक्यूट हिज और हर ड्यूटी, कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी को एक्सिक्यूट करने गया और वहाँ पर जो भी पर्सन है या पर्सन्स हैं वो उसको अपनी ड्यूटी को एक्सिक्यूट करने में बाधा पहुँचा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में भी पुलिस ऑफिसर बेसिकली यहाँ पर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है. जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अनलॉफुल असेंबली हो रही है या कहीं पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ कोई ना कोई ऑफेंस होने की चांसेस होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर जब उनको डिस्पर्स करने के लिए गए हैं और वो नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर वहाँ पर जो भी सस्पेक्टेड पर्सन होगा, जो भी इस तरीके का ऑफेंडर होगा, उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. और डिसर्टेड फ्रॉम एनी आर्म फोर्सेज, कोई आर्म फोर्सेज नेवी, आर्मी या एयर फोर्स से भागा हुआ कोई आर्मी पर्सनल अगर सस्पेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. रिलेटेड टू द एक्स्ट्राडिशन, बेसिकली दिस प्रोविजन इट डील्स विद द इंटरनेशनल लॉ. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी पर्सन ने इंडिया के बाहर किसी और कंट्री में कोई ऑफेंस किया है और ऑफेंस करने के बाद में वो इंडिया के टेरिटरी में आकर के कहीं पर छुप गया है और जिसमें जो दूसरी कंट्री है वो एज़ पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी उस पर्सन को अपने यहाँ पर लाना चाहता है या वो यहाँ पर उस कंसर्न एरिया के पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करता है कि इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी वारंट उस बेस पर ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है. अदर वन इज ब्रीच रूल्स फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 356 क्लॉज 5. सेक्शन 356 क्लॉज 5 ऑफ CRPC का अगर कोई भी पर्सन ब्रीच करता है तो ऐसी कंडीशन में भी पुलिस ऑफिसर ऐसे पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. या फिर लास्ट वन इज किसी भी पर्सन ने पुलिस ऑफिसर के सामने कंप्लेन की है कि इस पर्सन ने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या सस्पेक्टेड है, ये कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो पुलिस ऑफिसर जो है उस पर्सन को विदाउट वारंट यहाँ पर अरेस्ट कर सकता है. अरेस्ट के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि विदाउट वारंट जब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो उसे वो किन किन ग्राउंड्स पे किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है. एक बहुत ही लीडिंग केस आया आपका 18 दिसंबर 1996 में बाय द जस्टिस कुलदीप सिंह एंड बाय जस्टिस AS आनंद, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने और उसको डिटेंशन में रखने से रिलेटेड 11 गाइडलाइन को दिया गया और उन 11 गाइडलाइन को टाइम टू टाइम इवन इन 2005 में
आपके पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके इन गाइडलाइंस को सीआरपीसी के सेक्शंस में भी इंक्लूड कर लिया। तो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में जो गाइडलाइन दी गई थी वो सबसे पहली गाइडलाइन थी कि जो भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने जाएगा शुड बी बियर अ एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन, मतलब वो यहाँ पर अपना किस रैंक का ऑफिसर है, पुलिस इंस्पेक्टर है तो कितने स्टार का है, या हेड कांस्टेबल है तो वो कितने उसका है, यहाँ पे वाइट रिबन्स होते हैं, और इवन वहाँ पर जो उसका नेम है वो वहाँ मेंशन होना चाहिए। यानी अगर पुलिस ऑफिसर है तो किसी को भी जब अरेस्ट करने जाएगा विद वारंट या विदाउट वारंट तो उसका क्लियर होना चाहिए कि वो क्या है। इवन इस चीज़ को 2005 में हमारे यहाँ पर सीआरपीसी में सेक्शन 41B के क्लॉज ए में इस चीज़ को इंसर्ट किया गया। इवन इस क्लॉज में, इस गाइडलाइन में ये भी कहा गया कि जो भी पुलिस ऑफिसर यहाँ इंट्रोगेशन करेगा उस इंट्रोगेशन को भी जो रजिस्टर होगा उसमें वहाँ पर उसे मेंशन करेगा। दूसरी जो गाइडलाइन थी कि जो भी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर अरेस्ट जब करने जाएगा तो ऑन द स्पॉट जो है वो एक मेमो तैयार करेगा। मेमो तैयार करने में वो उस पर्सन का डिटेल जिसको वो अरेस्ट कर रहा है, उसने जो उसे सर्च किया है, सर्च करने के बाद में जो भी उसके पास में ऑब्जेक्ट, वेपन या जो भी चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाएगा। वहाँ पर उसके नाम के साथ में टाइम भी मेंशन करेगा, उसका प्लेस भी मेंशन करेगा। इवन उसको जो है वो साइन कराएगा विटनेसेस से, जिनमें उसके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं और उसके फ्रेंड भी हो सकते हैं। इस चीज़ को भी 2005 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके सेक्शन 41B के क्लॉज बी में रखा गया। अगला जो गाइडलाइन है वो है राइट टू इन्फॉर्म, मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके फैमिली मेम्बर को, उसके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा। यानी उस पर्सन को ये राइट दिया जाएगा कि वो अपने फैमिली मेम्बर को बता सकता है कि उस पर्सन को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और कहाँ अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है। इस चीज़ को भी सेक्शन 41 क्लॉज बी में सी क्लॉज में जोड़ करके 2005 में आपके सीआरपीसी का ही एक पार्ट बना दिया गया। इवन जब भी किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसको ये भी बताया जाएगा कि उसके क्या क्या राइट्स हैं। यानी वो अपनी पसंद के किसी भी एडवोकेट से वहाँ पर कंसल्ट भी कर सकता है, फैमिली मेम्बर को भी वहाँ पे बुला सकता है और रीज़न भी जान सकता है कि उसे किन ग्राउंड्स पे क्या चार्जेस लगे हैं जिनके बेस पे उसे अरेस्ट किया जा रहा है। देन जो भी ऑब्जेक्ट जब भी अरेस्ट किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को किसी केस डायरी, जो भी केस डायरी होती है पुलिस की, उसमें सारी एंट्रीज प्रॉपर वे में मेंशन होंगी। अगर कहीं पर भी किसी भी पुलिस जो भी पर्सन पुलिस ऑफिसर जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करता है, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, बेसिकली जो भी रेप के ऑफेंडर होते हैं तो उनमें तो मैंडेटरी ही कर दिया गया है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ही होगा। प्लस अगर कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, कोई माइनर इंजरी है, कोई मेजर इंजरी है और रिक्वायरमेंट है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर कराएंगे। इवन जो भी अरेस्ट करने की प्रोसेस में जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी मेमो हैं या जो भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को मजिस्ट्रेट के सामने जब 24 आवर्स के अंदर किसी भी पर्सन को प्रेजेंट किया जाएगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी मजिस्ट्रेट के पास में प्रोड्यूस किए जाएंगे। अगली जो गाइडलाइन है डीके बासु में कि उस पर्सन को अपनी खुद की चॉइस के एडवोकेट से कंसल्ट करने की और उसका केस रिप्रेजेंट करने की एक राइट दिया गया है, जिसको भी 2005 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके इंसर्ट किया गया है। इवन डीके बासु के केस में ही पुलिस कंट्रोल रूम का एक अरेंजमेंट, एक सेटअप करने की बात की गई थी, जिसको हमारे यहाँ पर 2005 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके एक पुलिस कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया गया, जहाँ पर जितने भी पर्सन हैं उनको जब भी अरेस्ट किया जाता है वो वहाँ पर डिस्प्ले होता है, किस चार्ज में किया गया है वो भी वहाँ डिस्प्ले होता है, इवन किस पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया है उनका भी वहाँ पर पूरा डिटेल होता है। इन चीज़ों को हम अगले लेक्चर में
डिस्कस करेंगे। होप सो आपको अरेस्ट क्या होता है, कस्टडी क्या होती है, और पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट कब किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, और जो DK बासु की गाइडलाइन है अरेस्ट करने में, डिटेंशन करने में, आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।